Assalamu alaikum, dear students. Can you hear me? वालेकुम सलाम यस सर। सर। यस सर। वालेकुम सलाम सर। यस सर, सुन सकते हैं। Okay, fine. Actually, I was ready for the lecture, but unfortunately, in time जो है वो लाइट का इशू बना है. सो अभी जो है वो हॉटस्पॉट से so this is our week 1 lecture. Previous lecture was concluded as a week 00 lecture. ज़ीरो लेक्चर भी आप उसे रीनेम कर सकते हैं. In this lecture, inshallah, we will study the importance of MATLAB and all the toolboxes, most useful toolboxes that are used within the MATLAB. So let's start. Your course code is 308L. So design the machine elements. काइंडली अपने माइक्स जो हैं वो ऑफ कर दें. ओके, थैंक्स. This is your course outline, and you people can see that most essential MATLAB for engineers and scientists 4th edition. So this is the some of them are reference books and some of them are recommended books. Almost 2 of these books are already provided to you people. One of them was reference book, and sorry, 2 of them were reference book, and I think so one was the test book. It was about MATLAB. In case of NCS, I already shared one of the test book, and in future I will share some of the reference books for NCS as well. So this is the book 1, 3rd edition, Essential MATLAB for Engineers and Scientists. I have considered this book as a test book and remaining 2 books as a and this one as a reference book, and this is the test book of NCS. So whenever you hear the name of NCS, finite element analysis, it's all about the modeling of different structures. So NCS have different models. Likewise, fluent model is available, static dynamic analysis, thermal module is also available, ice engine module is available. So different modules are available in case of NCS. We will discuss each module in detail after the midterm exam. So this is time to discuss about MATLAB. I am not going to waste my time on the class policy. You people are wise enough. So question is, why MATLAB? Why not Fortran? Why not other softwares? MATLAB एक्चुअली जो वर्ड है आप इसको देख सकते हैं, मैथ वर्क से जो है ना इसको आपको रिलेट कर सकते हैं. सो इसमें एक्चुअली यही है कि आपने मैथ में मैट्रिक्स, आई होप सो एफएससी पार्ट 1 में मैट्रिक्स को स्टडी किया होगा, पार्ट 1 2 में. प्लीज़ एनीवन, मैट्रिक्स, व्हाट डू यू नो अबाउट मैट्रिक्स? Sir, an arrangement of row and columns. Yes, Digits in row and columns, sir. yes. So can you give me example of the lowest, I think so lowest matrix, minimum matrix जो आप create कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल यूनिटी मैट्रिक्स की मैं बात करना चाह रहा हूँ. आपको डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं मैट्रिक्स के. फॉर एग्जाम्पल 1 क्रॉस 1 और मोर देन 1 क्रॉस 1. So actually I want to provide the information about matrix in such a way that all the matrix range from m cross n series. So you people know that m denote the rows and n denote the columns. Every matrix has a significant feature. So आपके पास मैथ वर्क में जितने भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो उसमें मैट्रिक्स की फॉर्म में सेव होती है. फॉर एग्जांपल ये जो इमेज आपको अभी करंट नज़र आ रहा है, सो
आप इसको ये कंसिडर ना करें कि अगर मैट लैब पे हम इसको क्रिएट करें तो ये किस तरह से बैक एंड पे जो इसका सेव हो रहा होगा डाटा वो किस तरह से हो रहा होगा। सो ये इमेज भी जो है आपके पास ये भी किसी न किसी मैट्रिक्स फॉर्म में जनरेट हुआ होगा, मैट्रिक्स फॉर्म में। प्लीज़ इग्नोर माई राइटिंग बिकॉज जब बोर्ड पे लेक्चर्स आपके आएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपको ये क्लियर होगा। तो हर इमेज जो एक पर्टिकुलर इमेज होगा वो पर्टिकुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर होगा, जो जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी तो उसके मुताबिक उसको स्टोर करता है। तो मैटलैब जो है ये मैथमेटिशियन ने ही डेवलप किया था 1984 में। सो उस दौर में फोटोन भी अवेलेबल था। सो अवेलेबिलिटी ऑफ फोटोन वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर द मैथमेटिशियंस, सो they have gone for MATLAB. It is the most effective computation language. In today's lecture, we will learn about how to download and install MATLAB. We will learn about the history of MATLAB, what is MATLAB and how can we use it. MATLAB as a calculator, variable declaration, matrix operations, algebra, column operations and basic plotting. So here you can see it is a 3D plot of a temperature with respect to power and time. These plots are you can say for example you have a, if you are working on thermal systems, for example thermal management of batteries, so you are providing 1 kilowatt to a specific heater, so with respect to time its temperature will vary with respect to चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। ये एमएस थीसिस में ऑब्वियसली जो थर्मल के स्टूडेंट्स होते हैं ये 3D प्लॉट्स वहाँ पर ड्रा करते हैं। एक्चुअली आई वांट टू टेल अबाउट द यूज़ ऑफ मैटलैब के मैटलैब आपके पास बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। ये जस्ट इंजीनियर से यूज़ नहीं कर रहे, इसको साइंटिस्ट भी यूज़ कर रहे हैं, मैथमेटिशियन भी यूज़ कर रहे हैं, और भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं फाइनेंस वगैरह वो भी इसको यूज़ कर रहे हैं। इन केस ऑफ अगर मैकेनिकल इंजीनियर्स की बात करें तो वी हैव अ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस ऑफ अ मैटलैब, और पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में अगर हम देखें तो इसके जो डिफरेंट टूल बॉक्स अवेलेबल हैं हमारे पास, जिसमें FEA टूल बॉक्स इसका मोस्ट यूज़फुल है, जिसको हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो सिग्नल प्रोसेसिंग का मोस्ट यूज़फुल टूल बॉक्स है। इन एडिशन वी आल्सो हैव अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बॉक्स अवेलेबल एज वेल. Physiologic toolbox is also available. In addition, different plots in 2D and 3D format are available. Curve fitting tools are also available. So itself MATLAB एक complete package है। आप इस पे जो है वो different apps भी जो हैं वो develop कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो कोडिंग परफॉर्म करना पड़ेगी, तो इसका जो GUI इंटरफेस है बहुत ही वो फ्रेंडली है। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ पीपल प्रेफर टू यूज़ दी MATLAB. So in case of calculator we will see basic operations, वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑलरेडी एक एग्जांपल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दी थी। मैट्रिक्स ऑपरेशंस, ये इमेज प्रोसेसिंग की मैंने आपको एग्जांपल दी अभी कुछ देर पहले। अलजेब्रा आपके पास डिफरेंट पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं। अगर आपके पास हायर ऑर्डर इक्वेशंस आ जाती हैं, लोअर ऑर्डर इक्वेशंस आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हायर ऑर्डर को अगर आपने इजीली सॉल्व करना हो तो यू हैव अ मैटलैब टूल अवेलेबल। इसी तरह कॉलन ऑपरेटर्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, वो बेसिक जो प्लॉटिंग है उसके बारे में हम देखेंगे। This is the most summarized history of MATLAB. MATLAB was developed in 1984, but its development was started in 1970 by Clever Muller. C लैंग्वेज में इसको जो है इन्होंने डेवलप किया था और ऑलमोस्ट 1984 में इसको डेवलप कर लिया उन्होंने। और फर्स्ट इसका जो वर्जन है वो जो है वो 2000 में लॉन्च हुआ था, और उस 1984 में लॉन्च हुआ था। और उस वक्त जो है उसका जो अवेलेबल वर्जन था वो 1.0 था, एंड नाउ इट इज़ 2020 एंड इसका जो बीटा वर्जन है वो करंट 9.9 में इन्होंने लॉन्च किया है। सो इट इज़ द मोस्ट लेटेस्ट वर्जन। कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, okay. sir. Okay.
सो 5 मंथ्स पहले ही ये इन्होंने जो है वो लॉन्च किया है, ये 2020 जो बीटा वर्जन है मैडलैब का. एंड in 2004 MATLAB had around 1 million of users across industry and academia. So why in C language? Because Fortran जो आपके पास अवेलेबल था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था साइंटिस्ट के लिए अंडरस्टैंड करना और मैथमेटिशियंस के लिए भी. सो फॉर देयर इज़ C लैंग्वेज को उन्होंने प्रेफर किया है. Now I will talk about downloading and installation of MATLAB version 2017 beta. First of all, I want to clear one thing. Most of students have connected me about the installation of MATLAB. सर हम कौन सा वर्जन इंस्टॉल करें, 2007 करें, 8 करें, 16 करें, 17 करें. So I have just one answer. It depends upon your ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर आपका जो लैपटॉप अगर है आपके पास, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फॉर एग्जाम्पल Core i3 है, Core i4 है, Core i5 है, ये उस पर डिपेंड करता है. आप Core i3 में 2020 बीटा इंस्टॉल कर लेंगे, बट व्हाट विल बी द प्रॉब्लम ये होगा आपको कि इन फ्यूचर जब आप लोग डिफरेंट जो है वो कोड्स को डेवलप कर रहे होंगे और उस दौरान सम टाइम ये होता है कि आपका जो लैपटॉप है वो हैंग हो जाता है, और जब वो हैंग होता है तो उस दौरान ये होता है कि आपका कंप्लीट मैटलैब जो है वो बंद हो जाता है और आपने जो भी कोड उसमें राइट अप किया होगा वो लॉस हो जाएगा. सो अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा नॉर्मली इसलिए होता है कि आपके पास जो सिस्टम में आपके पास रैम होती है, मेमोरी होती है, वो सपोर्ट उसको नहीं कर रही होती. आपने बहुत हैवी वर्जन इंस्टॉल कर लिया होता है अपने डेस्कटॉप पे. सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट, आप लोग काइंडली सबसे पहले अपने हार्डवेयर को चेक करें, आपके हार्डवेयर की कैपेबिलिटी क्या है. सो उस बेस पे रिकमेंडेशन हो सकती है कि आप कौन सा वर्जन इंस्टॉल करें. बट आई विल रिकमेंड टू इंस्टॉल मैटलैब वर्जन 2017 बीटा. इसकी जो वर्किंग है वो बहुत स्मूथ है. इसके अलावा इसमें जो हैंगिंग या अनफॉर्चुनेटली जो ऑफ हो जाता है उसके एरर्स भी कम आते हैं. मैटलैब में अक्सर जब हम मिड ले रहे होते हैं तो यही इशू आता है, सर मेरा मैटलैब जो हैंग हो गया है, अब मैं क्या करूं. तो देखें इसमें ये हमारा प्रॉब्लम तो नहीं है. आपने एक कोर i2 सेटअप में मैटलैब 20 वर्जन इंस्टॉल करके उस पर आप अपना मिड सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता. इट इज़ वेरी सिंपल. मैं आपको ये चीज़ें नहीं समझा सकता. आप एनसीएस और मैटलैब को कंबाइन इंस्टॉल करके देखें अपने लैपटॉप में, वो हैंग हो जाएगा. और दूसरा मैं आपको बता दूँ, लेटेस्ट वर्जन की अगर बात की जाए तो MSBS लेवल पे जो है वो इतनी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई कि जो आप MSPID लेवल पे यूज़ कर रहे होंगे. ऑलमोस्ट वही कमांड्स हैं और सब कुछ वही है जो ओल्ड वर्जन्स में था. लेटेस्ट वर्जन तो जो आ रहे हैं उनमें सिग्नल्स प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ऐप्स हैं उनको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. इसके अलावा जो आपके हार्डवेयर की कैपेबिलिटी है, सम टाइम ये होता था कि आपका जो एक्सटर्नल हार्डवेयर है जैसे आर्डिनो या रास्पबेरी पाई है, उसको जब हम लोग कंपैटिबल बनाते थे मैटलैब के साथ तो उसमें एरर्स आते थे, इश्यूज आते थे. सो जो लेटेस्ट वर्जन आया है मैटलैब के, उन्होंने उसमें इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया है. बट आई थिंक यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ आर्डिनो और रास्पबेरी पाई इन थर्ड ईयर नाउ. सो फॉर नाउ मैटलैब 2017 वर्जन इज़ बेस्ट फॉर यू पीपल. सो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है. आई होप सो आप लोग मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे. स्पेक्स ऑफ योर मशीन. सो दिस इज़ प्रोवाइडेड फॉर द इंस्टॉलेशन. विंडोज़ 10 पे भी आप इसको जो है वो कर सकते हैं. इसके अलावा जो है इसकी रिक्वायरमेंट है आपके पास, रैम मिनिमम इतनी होनी चाहिए आपके पास. और विंडोज 7 पे भी कर सकते हैं. इसके अलावा XP पे भी इंस्टॉल हो सकता है, नो इशू. नाउ हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल मैटलैब. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू पीपल, आप लोगों में से बाज़ ने जो है वो प्रीवियसली लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लिए होंगे, बट अभी जो है वो चाह रहे होंगे कि वो ओल्ड वर्जन्स पे आएँ क्योंकि उनकी जो लैपटॉप है वो हैंग होना स्टार्ट हो गया है या उसकी स्पीड है वो स्लो हो गया है. तो अनफॉर्चुनेटली अगर वो लोग उसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसका एक कम्प्लीट प्रोसीजर है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट गोइंग टू कंट्रोल पैनल एंड अनइंस्टॉलिंग द मैटलैब फ्रॉम दैट टैब. you also have to delete the files from program files of C drive or where you have installed MATLAB. So आपको वहाँ से भी फाइल्स को प्रॉपर डिलीट करना पड़ेगा.
सो अनइंस्टॉल का प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, एंड हाउ टू डाउनलोड अ कंप्लीट क्रैक्ड वर्जन ऑफ अ मैटलैब, एंड हाउ टू इंस्टॉल मैटलैब. In previous days I have developed a YouTube video link, so आप काइंडली उसको ज़रूर वॉच करें. वो लिंक भी मैं आपसे शेयर ऑलरेडी मैंने ग्रुप में कर दी हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में. जिन लोगों को नहीं पता वो अभी सुन लें. वो उस लिंक में तीनों जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन कर दी गई हैं कि किस तरह से अनइंस्टॉल करना है कम्प्लीटली इस पैकेज को, और किस तरह से डाउनलोड करना है किसी भी मैटलैब वर्जन को, और किस तरह से उसको इंस्टॉल करना है और प्रोफेशनल क्रैक उसका जो है वो डेवलप करना है. So here are some of the steps. For example, how to download. जो लिंक आपसे मैंने शेयर किया है यूट्यूब का, उसमें आप जब उसे ओपन करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक गिवन होगा. ये गूगल ड्राइव का लिंक है जिसमें ये मैटलैब का 17 वर्जन अवेलेबल है, और ये 11 GB का सेटअप है. ऑलमोस्ट 4 से 5 आवर लगेंगे इसको डाउनलोड करने में, और इट इज़ compatible विद दी 64-bit विंडो, एंड जिप फाइल होगी. इसको पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होगी आपको. इन एडिशन आई वांट टू टेल यू पीपल, मैटलैब जो है समटाइम वो आपके पास 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर आता है. 2 DVDs में अवेलेबल होता है और समटाइम 1 DVD में अवेलेबल होता है. सो आप कहीं से भी अगर मैटलैब लेके आते हैं, अगर वो 1 DVD में है तो इट इज़ फाइन. जस्ट सेटअप को आपने रन करना है, की प्रोवाइड करनी है, लाइसेंस करना है, और कुछ फाइल्स को कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना है, इट इज़ ओके. बट अगर आपका जो मैटलैब है वो 2 और मोर DVDs में आ रहा है, सो आपको पावर एसओ जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा. सो इस लिंक से आप पावर एसओ इंस्टॉल कर सकते हैं. इससे ये होता है कि आपके पास जो डिफरेंट डिस्क होती हैं सेटअप की, आप उसको जो है वो माउंट कर सकते हैं. सो आप वो वीडियो लिंक देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन देम अगेन. आप उनमें इंडिविजुअली हर सीडी को पहले माउंट करेंगे, वो इंस्टॉल करेंगे. जब फर्स्ट DVD ख़त्म होगी ऑटोमेटिकली वो आपको अनमाउंट करने का कहेगा फर्स्ट DVD को, और आप सेकंड DVD माउंट कर देंगे. इंस्टॉलेशन का कंप्लीट प्रोसीजर वही है. तो मैंने जो डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, फॉर एग्जांपल जो ISO इंस्टॉल करके डिफरेंट DVDs में मैटलैब अवेलेबल होता है, मैंने उसको जो है वो यूट्यूब पे जो है वो मैंने वो उसका लेक्चर प्रोवाइड किया है आपको. सो क्रैक किस तरह से करते हैं इसका प्रॉपर प्रोसीजर मैंने बताया है. लाइसेंस स्टैंड अलोन जो है वो आपने इस एड्रेस पे पेस्ट करना है. इसके अलावा ये फ़ाइल जो क्रैक के फोल्डर में अवेलेबल होती है, इसको आपने 2 प्लेसेस पे पेस्ट करना है. एक यहाँ पे पेस्ट करना है, एक और जगह है. सो वो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है. वीडियो लिंक मैं आपको बता देता हूँ. इस लिंक से आप मैटलैब को डाउनलोड कर सकते हैं. एंड हेयर इट इज़ द लिंक फॉर डाउनलोडिंग पावर एसओ. इट इज़ ओनली फॉर दोज पीपल हु हैव मैटलैब सेटअप available in 2 or more parts. So this is the power ISO. I am not going to show you people video of this version. So this is the YouTube link. ये कल मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए जो है वो क्रिएट किया है. सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट कि आप इसको गौर से देखिए और इसको फॉलो करें. सेटअप आप मुझसे ले सकते हैं. ऑफिस 12C में मैं अवेलेबल होता हूँ MOD डिपार्टमेंट में. सो इसके अलावा ये लिंक ऑनलाइन भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है. तो इस YouTube में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इस लिंक में अवेलेबल हैं, अबाउट हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल एंड हाउ टू प्रोवाइड अ क्रैक्ड वर्जन with professional license. So we have discussed about how to download and install MATLAB and history of MATLAB. So what is MATLAB and how can we use it as a calculator for declaration of variables, how we can perform matrix operations, how we can solve algebraic equations, how we can use colon operators and basic plotting. सो इनमें से कुछ जो चीज़ें हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. एनी क्वेश्चन प्लीज़. एनी क्वेश्चन प्लीज़. एनीवन? Sir? No, sir. All clear. Okay, thank you. प्लीज़ जस्ट वेट फॉर 1 मिनट. अजान हो रही है.
So MATLAB stands for Matrix Laboratory. It is a high performance language for technical computing. It integrates मतलब इसमें जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं आपके आइदर डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, और इसके अलावा जो इमेज प्रोसेसिंग है, डाटा विजुअलाइजेशन है, कंप्यूटेशन के फिनोमेनाज हैं, सो इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट टूल जो वर्ल्ड यूज़ किया जा रहा है इन सब के लिए. It is used for math and computation, modeling and simulation, data analysis and visualization, scientific engineering, graphics, application development including GUI. So इन सब को मैं जो है वो क्विक गो थ्रू करता हूँ इन सब के एग्जांपल्स. So here you people have a aircraft vibration analysis. You people know that there is a continuous monitoring of aircrafts engines, and there is a continuous monitoring of all performance parameters of aircrafts during its operation. So why we need to monitor them during the flight? Because it may be possible that some of the part of the aircraft engine is going to fail, और इनिशियल जो आपके पास जो उसके सिग्नेचर्स होते हैं सिग्निफिकेंट, वो आना शुरू हो जाते हैं. एक्चुअली मेरी अपनी जो स्पेशलाइजेशन की फील्ड है वो मैकेनिकल वाइब्रेशन ही है. सो मैं किसी भी सिग्नल को देख के आपको ये बता सकता हूँ कि जहाँ से आपने सिग्नल लिया है वहाँ पे फॉल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा. और सिग्नल्स में इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है कि आप वहाँ से जो है वो सर्टेनिटी ऑफ फॉल्ट के बारे में गैस कर सकते हैं कि कितना सर्टेन फॉल्ट है, फिर कितना क्रिटिकल है, एंड हाउ मच टाइम इट इज़ गोइंग टू टेक फॉर कंप्लीट फेलियर. नॉट ओनली दिस, वेयर इज़ दी फॉल्ट लोकेटेड, आप उसकी पोजीशन को भी जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं. सो ऑलमोस्ट नॉट ओनली इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट, ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड्स में जो है वो वाइब्रेशन ने एक जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया वहाँ पे भी. यहाँ पे ये जो आपको डाटा नज़र आ रहा है ये एक एनालाइज़र से कलेक्ट किया गया है. आपको एनालाइज़र आई थिंक सो मैंने वाइब्रेशन की क्लास में शो करवाया था, CSI 2130 and CSI 2140 वाइब्रेशन एनालाइज़र. सो इट हैज़ एबिलिटी टू कलेक्ट रियल टाइम डाटा. तो वो जो रियल टाइम डाटा है वो आप उसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करते हैं. टाइम डोमेन में जो डाटा आप वहाँ से गैदर करते हैं वहाँ उसका फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म भी ले सकते हैं, पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी एनालिसिस भी ले सकते हैं, और स्पेक्ट्रोग्राम भी इसके जो आप प्लॉट कर सकते हैं. अगर आप लोगों को याद हो तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में और डिफरेंट मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स में आप लोगों ने फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म की हिस्ट्री जो है वो स्टडी की होगी, किस तरह से जो है फूरियर ट्रांसफॉर्म्स को आप सॉल्व करते हैं. वहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म नॉर्मली सिग्नल जो आप कलेक्ट करते हैं जहाँ से भी, ये आप क्वेश्चन करेंगे सर ये PSD ही क्यों, FFT क्यों नहीं, या FFT लिया है तो PSD क्यों लिया, स्पेक्ट्रोग्राम क्यों लिया. इट डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन. एवरी एप्लीकेशन और एवरी यहाँ पे जो सिग्नल्स प्रोसेसिंग की जो और जो आपके पास जो अवेलेबल टूल्स हैं उनकी एक सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो रियल टाइम डाटा है वो आपने एक ऐसे मशीन से कैप्चर किया है यहाँ पे जो आप ऐसे समझिए कि अनस्टेबल सिग्नल नहीं है, या यहाँ पे जो है वो जो रियल टाइम डाटा आ रहा है वहाँ पे जो इरेगुलरिटीज़ हैं सिग्नल में वो कम हैं. तो उस केस में ये है कि आप लोग जो है अगर सिग्नल में पीरियोडिसिटी है तो आप उसमें फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म लगा सकते हैं. अगर पीरियोडिसिटी नहीं है तो उस केस में जो है वो आप वेवलेट टेक्निक्स और डिफरेंट फिजियोलॉजिकल टेक्निक्स भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा सिग्नल्स की जो फिल्ट्रेशन होती है पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी एनालिसिस टेक्निक्स में हम परफॉर्म करते हैं. ये नॉर्मली इसलिए करते हैं कि इसमें जो डिफरेंट फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं वो सिग्नल्स की जो एक्चुअल जो फॉर्मेट होता है उसका जो, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जब एयरक्राफ्ट मूव कर होगा उससे जो आप डाटा कैप्चर कर रहे होंगे उसमें सिर्फ IC इंजन की ही वाइब्रेशन नहीं आ रही होगी. IC इंजन के अगर 1000 ऑफ कंपोनेंट्स हैं तो उन सब की वाइब्रेशन उसमें आ रही होगी, लेकिन उसमें बाकी जो पार्ट्स हैं उनकी नॉइस भी उसमें ऐड हो रही होगी. सो वी नीड टू फिल्टर द नॉइस and other unnecessary components. So for that purpose we perform signals processing. So signals processing toolbox is also available in MATLAB. So here it is a complete spectrogram of the signal. We can see that amplitude of the vibration signal has a particular frequency component at about 230 Hz, and it is of amplitude about 3 units. And this severe point is located at the time of about 500 seconds. So इससे आप बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो कैप्चर कर सकते हैं.
और पार्टिकुलर फॉल्ट को डायग्नोज कर सकते हैं। प्लीज़ इसको देखिए। You people have studied about the harmonic circles, हार्मोनिक मोशन जो साइन ओमेगा टी की फॉर्म में होती है आपके पास। सो हेयर यू कैन सी डेट 4 साइन। ये रेड वाला जो है इसका टाइम पीरियड आप देखें, इसके टाइम पीरियड को हमने जो है वो वेरी किया है रेड वाले को। इसी तरह जो आपके पास ये क्रिएट हो रहा है अभी, ये किसी और का क्रिएट हो रहा है। ये भी आपको यहाँ पे एक्चुअली बताना क्या चाह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, प्लीज़ वेट। ये आप देख रहे हैं ये डिफरेंट टाइम पीरियड के साथ जो डिफरेंट साइनसोइडल जो सिग्नल्स हैं आपके पास, हार्मोनिक सिग्नल्स हैं वो आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड ब्लू वाले का है, उसके बाद जो टाइम पीरियड है वो रेड वाले का है, और उसके बाद जो है वो ग्रीन वाले का है। सो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स जो आ रहे होते हैं आपके पास जब वाइब्रेशन आप कैप्चर करते हैं किसी भी कंपोनेंट की, तो उसमें जो नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स होते हैं डिफरेंट, उन सब की जो वाइब्रेशन होती है उसमें आ रही होती है, वो सब की सब उसमें क्या हो जाती हैं, एडअप हो जाती हैं। तो एडअप होने के बाद जो कंप्लीट सिग्नल बनेगा आप रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लैक, सो कंप्लीट जो सिग्नल आपके पास बनेगा जब वो ऑल टाइम पीरियड्स आपस में एडअप हो जाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। सो नोड को नोड से और एंटी नोड को एंटी नोड से आप एडअप करते हैं और जो कॉम्प्लेक्स सिग्नल है वो जनरेट होता है। और एक्चुअली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो प्रीवियस सिग्नल आपने देखा वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का आ रहा था, और ये कंबाइंड कंपोनेंट्स का जो हार्मोनिक एनालिसिस है वो आप लोग देख रहे हैं। सो दिस इज़ अनदर एग्जांपल। आई होप सो यहाँ से आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। दिस ब्लू वन इज़ द सिग्नल दैट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द सपोज this is collected from the bearing 1 and this is the signal that is collected from the bearing 2। अब क्या होगा जब आप इन दोनों को ऐड अप कर लेंगे, ये F1 जो है आपके पास जो है वो ब्लू में और F2 जो है ये ब्राउन में यहाँ पे आ रहा है। एक का टाइम पीरियड कम है, एक का टाइम पीरियड ज़्यादा है। सो ऐसे समझिए ये डिफरेंट बेयरिंग से आपने डाटा कलेक्ट किया, और अगर एक ही बेयरिंग से कर रहे हैं तो यूँ समझिए कि डिफरेंट जो सिम्टम्स हैं फॉल्ट के, फॉर एग्जांपल बेयरिंग की जो इनर रेस थी उसमें प्रॉब्लम आ गया, या उसकी जो बॉल थी उसमें क्रैश डेवलप हो गया, या रबिंग हो गया है, या आउटर केज में इशू आ रहा है, लुब्रिकेशन का इशू आ रहा है, या शाफ्ट के अलाइनमेंट का इशू है, या आपके पास जो है वो मोटर के केस में इंडक्शन मोटर है अगर तो उसकी अलाइनमेंट एसेंट्रिसिटी का इशू आ रहा है, गियर बॉक्स का प्रॉब्लम है। तो जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनका सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड होता है, और एक सिग्नल में जो है वो आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट्स आ रहे होते हैं, एंड पे एडअप होते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिग्नल वो जनरेट करते हैं। सो जब कॉम्प्लेक्स सिग्नल जनरेट होता है तो उसको एडअप आप करते हैं। जैसे इनिशियली आप लोग देख रहे थे तो आपके पास जो सिग्नल जनरेट होता है उसका आप फास्ट फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म लेते हैं, और फास्ट फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म के बाद अब देख रहे हैं ये बिल्कुल स्मूथ सिग्नल है और इसका बिल्कुल स्मूथ फास्ट फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म आपने जनरेट किया है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स सिग्नल आ रहा था तो उस केस में आपके पास जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट जो है वो फास्ट फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म का आपको व्यू नज़र आ रहा होगा। ये एक्चुअल सिग्नल जो हम लोगों ने कलेक्ट किए हुए हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। सो लुक हेयर, दिस इज़ फास्ट फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म ऑफ द बोथ सिग्नल्स। जब हम इनको एडअप कर लेते हैं आपस में, ये एडअप अभी नहीं हुए, दिस इज़ F1 and resultant will be F1. Now F2 is also coming, and F1 plus F2, this is the resultant. This is the time waveform. Time waveform is always plotted as a time on the x-axis and amplitude as a y-axis. So ये आपका टाइम है और ये आपका एम्पलीट्यूड है y, और इसका जो फास्ट फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म है इसमें आप देख रहे हैं दो प्रोमिनेंट पीक्स आ रही हैं। डेट मीन्स टू प्रोमिनेंट कंपोनेंट्स हैव अ सिग्निफिकेंस हेयर। जब थर्ड सिग्नल भी आ जाएगा उसमें, और सिग्नल इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसको अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन FFT जो है वो हमें हर कंपोनेंट को जो है वो इजीली जो है वो इंडिविजुअल फॉर्मेट्स में जो है वो हमें ग्रो अप करके दिखा देता है। सो हमें पता है 50 हर्ट्ज़ से 100 हर्ट्ज़ एंड 200 हर्ट्ज़ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। सो इससे हम डायग्नोज करते हैं कि आपका जो सिग्नल है उसमें कौन सी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो आप लोग जो है वो
फॉल्ट डायग्नोसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं. दिस थिंग इज़ ओनली एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स. एनी क्वेश्चन प्लीज़. सर ये वैसे जो अभी आप ये चीजें बता रहे हैं सर, इनमें से कुछ कुछ बातें समझ आती हैं, कुछ कुछ मतलब No ऐसे issue. लगता है कि जैसे देखें, ये जो चीज़ें हैं ये आपको हो सकता है MS के बाद समझ आएँ. ये आपको अभी जस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है कि आप लोग क्यों मैड लैब को स्टडी कर रहे हैं या एनसीएस को क्यों स्टडी कर रहे हैं, ये वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ. नॉर्मली होता है कि जब स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट होकर जाते हैं तो उन्हें मैड लैब तो आती होती है, लेकिन ये नहीं पता होता कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, प्रैक्टिकल लाइफ में जो इसकी एक्चुअल एप्लीकेशन है वो कहाँ पे है. सो मैं इस टाइम आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पहले बता रहा हूँ. मैड लैब इंशाल्लाह हम इसके बात करेंगे. चलें ठीक है सर, थैंक यू. Yes. So this is the PV module of our dynamic simulation that is used for the dynamic simulation. आप लोगों ने you people have used about the photovoltaic modules, सोलर पैनल्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. सो सोलर पैनल्स में यही होता है कि एनर्जी कन्वर्जन होती है, ग्रीन एनर्जी जो है सोर्स है. सो उसको आपने जो है डिज़ाइन करना है. सो उसको इनिशियली आप जो है वो सिमुलेट कर सकते हैं बिफोर डिज़ाइनिंग. So this module is available in MATLAB, and you can use it for the dynamic simulation of PV modules, and you people can easily identify what will be the output of your system जो आप लोग सिमुलेट करना चाह रहे हैं, उसकी आउटपुट क्या होगी और आप लोग उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं. The most beautiful idea of the MATLAB is that it can also provide a feedback. So we have different PID controllers and that can manage the output as well. So this is the simulation of PV module. Here you people can see it is a fluid module. Different heat exchangers, boilers, condensate tubes. Whenever different fluids are flowing across them with different temperature and pressure, so there is always some heat exchange, and tubes vibrate because of the flow induced vibration phenomena. So what will be the heat transfer and how my tube will be vibrating, and how much there will be the heat transfer, and what will be the inlet and outlet temperature, what will be the different vortices and different modules. So ये जो डिफरेंट प्रेशर काउंटर्स होते हैं, टेम्परेचर काउंटर्स होते हैं, वेलोसिटी काउंटर्स होते हैं, ये आप इजीली मैटलैब पे डेवलप कर सकते हैं. सो द मोस्ट यूजफुल टूल यूज फॉर इट इज़ FEA टूल बॉक्स मॉड्यूल. इट इज़ यूज फॉर द डायनामिक सिमुलेशन. So this is one of the another FEA toolbox module. This is the example of the aircraft wing की ये जो एग्जांपल आपको दी गया है, ये एक प्रॉपर जो है वो वेलोसिटी काउंटर आपको बना के दिखाया गया है. ये विंग की जो शेप है वो नासा से जो है वो वहाँ से वो उठाई गया है. उसका जो मॉड्यूल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ. उसको जब आप लोड करेंगे मैटलैब में और उस मॉड्यूल में FEA मॉड्यूल में आप उसको जो इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन से अप्लाई करेंगे, सो उस पे जो है वो आप डिफरेंट इसके जो आउटपुट है वो आपको वो प्रोवाइड कर देगा. सो हेयर यू कैन गेट वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द प्रोफाइल ऑफ अ विंग. सो ये जो एयरफॉयल मॉड्यूल है जो 4412 है. सो आप अभी भी नासा की NACA पे वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे 4412 पे जो 4412 पे आपके पास जो विंग मोड्स अवेलेबल हैं वो आप डाटा इंटरप्रेट करें, उसको लोड करवाएं मैटलैब में, यहाँ पे आके पुट कर दें. सो ये आपको उसकी शेप जनरेट करके दे देगा. फिर आप इसको डिफरेंट कॉर्ड लेंथ होती है, एंगल्स ऑफ अटैक्स होते हैं, ये इनपुट पैरामीटर्स हैं इसके. ये आप इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये आपको जो है वो आउटपुट प्रोवाइड कर देगा. सो इसमें जो डेंसिटी आप प्रोवाइड करेंगे कि जो एयरक्राफ्ट विंग है वो किस में मूव कर रहा है, एयर में मूव कर रहा है, वाटर में मूव कर रहा है, यहाँ पे भी है. सो दीज आर द डिफरेंट इनपुट्स एंड एट द एंड यूजर विल बी एबल टू नो what is the lift force, that is what is the lift coefficient and drag coefficient that will be acting on the wing, and what will be the lift and drag force that will be acting on the wing, and is it under the critical region
और इज़ इट इज़ सेफ और नॉट। सो इसमें यह है कि आप इसकी जो डिफरेंट एंगल्स ऑफ अटैक्स हैं और इनपुट पैरामीटर्स हैं, इनको वेरी करके आप एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं विंग डिज़ाइन में। सो जी ऑलरेडी डेवलप्ड टूल बॉक्स अवेलेबल है मैटलैब में। इट इज़ नॉट सो ईजी टू डेवलप दिस टूल। ये इन्होंने जो ऐप डेवलप किया है इसके बैक एंड पे एक प्रॉपर जो है वो प्रॉपर कोडिंग की गई है। ये जो GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, इसके बैक पे एक प्रॉपर एल्गोरिदम है जो उन्होंने डेवलप किया था। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एल्गोरिदम, नॉट इवन ऑल इंजीनियर्स आर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल द मॉड्यूल्स ऑफ द मैटलैब। सो जो पर्टिकुलर पर्सन है जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है वो उसका ही एल्गोरिदम अंडरस्टैंड कर सकता है। सो उस एल्गोरिदम की बेस पे वो ऐप्स को डेवलप करते हैं और ऑनलाइन प्रोवाइड कर देते हैं, और इसके बैक एंड पे जो कॉपीराइट्स हैं वो उनके पास अवेलेबल हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मैटलैब कि इन्होंने GUI इंटरफेस में आपको डिफरेंट ऐप्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अब इसको यूज़ करना डिफ़िकल्ट नहीं रहा। पहले में तो ये था कि GUI डेवलप नहीं हुआ था, आप लोगों को कोड को अंडरस्टैंड करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप अगर ईज़िली आपने फ्लूइड डायनेमिक्स, CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल वाइब्रेशंस एंड थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स स्टडी किया हुआ है आप लोगों ने, तो आप इजीली इस ऐप को रन कर सकते हैं। आई होप सो कि जब आप लोग थ्योरी स्टडी कर रहे होंगे इन सब्जेक्ट्स की तो उन्होंने आपको बताया होगा इसके बारे में। CAD and CAE तो नहीं होगा? Sorry, this will be offered in the 4th year. I hope so. So here you can see what is the advantage of using this module. You people can get different velocity profile, temperature profiles, pressure counters. सो आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द अनदर GUI। हेयर यू कैन थी दिस इज़ अ कंप्लीट थीम ऑफ एल्गोरिदम दैट इज डिज़ाइन फॉर अ नोज़ल। सो ये आप देख रहे हैं ये नोज़ल के लिए इन्होंने ये कंप्लीट एल्गोरिदम डिफ़ाइन किया था, और इसके बैक एंड पे जो GUI है अब इसको अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट है या GUI को? ऑब्वियसली एल्गोरिदम को। So GUI is available, data import करें and you people will get the different outputs. This is MuPad notebook module of a MATLAB. It is the most useful mathematical tool. Mathematicians are using MuPad. You people can get derivatives, integrals and other different mathematical operations as well. You people can solve polynomial equations and non-linear equations that are very difficult to solve manually. So I hope so you people are understanding me. This is the menu bar, format toolbar, command bar आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। Here you can provide your code or input and here you people will get output. This is the one of the most useful toolbox of MATLAB. Simulink. Whenever you people will see name of a MATLAB, you will also see Simulink. Why Simulink and where it is used? Normally Simulink is used to make the external hardware compatible with the laptop or with your hardware. So for example, I am going to collect the vibration data of some aircraft wing, and I have to ensure the capability of a sensor that is recording data with my laptop. So old versions of MATLAB normally have a error in this case, but latest versions of MATLAB have no error. Some of my students are working on the most efficient design of early fault diagnosis of machines. So वो एक ऐसा compatible system डिज़ाइन कर रहे हैं जो अर्ली फॉल्ट डायग्नोसिस में हेल्प करेगा मशीन्स की। उसका मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे दूंगा एंड पे। वो लोग भी जो है वो सिमुलिंक को यूज़ कर रहे हैं। सो सिमुलिंक को इसके अलावा मैं अगर आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं, सिमुलिंक फॉर एग्जांपल इट इज़ यूज टू फाइंड द आउटपुट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जांपल यू पीपल हैव अ सस्पेंशन सिस्टम ऑफ योर कार। सस्पेंशन सिस्टम में आपके पास जो है वो शॉक ऑब्जर्वर्स होते हैं। सो उनमें प्रॉपर जो स्टिफनेस और डैम्पिंग एलिमेंट हैं, अगर आप उनकी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं सिमुलिंक में, और जो आपने कीप इन योर माइंड
you are going with mechanical vibration. So this is advantage for you people कि उन practical applications को जो numerical equations हम develop करेंगे इन systems की वहाँ पे mechanical vibration में, फाइन. सो उनको मैं आपको यहाँ पे मैटलैब पे भी प्लॉट करके दिखाऊंगा कि उन न्यूमेरिकल इक्वेशंस की यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से हम जो है वो सिमुलिंक पे उसको प्लॉट कर सकते हैं. न्यूमेरिकल इक्वेशंस और वाइड इनफ 3-3-4-4 पेजेस पे उनकी जो है वो न्यूमेरिकल जो है मॉडलिंग आती है. वो उसके बाद जब के जाके आपके पास जो है एक प्रॉपर मैथमेटिकल इक्वेशन आती है जो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वेशन भी हो सकती है. इट कैन बी ऑफ 2D ऑफ और 3D of f. So these equations can be made applicable with the use of Simulink. Why we use Simulink? Simulink is used to ensure the response of the developed numerical model. For example, one of my students was working on the suspension system of a tank engine of HIT. So he developed Simulink. So he developed the vibration numerical models equations, and then he plotted them on the Simulink to get the output response, and he was successful in his final year project. So most of students of 2K17 batch are with me in case of final year projects. So I am going to give you a simple example. Here you can see this is a stiffness element. आप लोगों की कोई और क्लास है अभी? सर और क्लास नहीं है. सो एक्चुअली हमारा जो लेक्चर है वो 15 मिनट्स लेट स्टार्ट हुआ था. सो आई एम गोइंग टू टेक योर 15 मिनट्स. सो प्लीज़ कम विद मी. और जो लीव करना चाहते हैं सेशन को लीव कर सकते हैं, नो इशू. तो सर अटेंडेंस फिर कैसे होगी? अटेंडेंस लिंक जो है वो मैं आपको ड्रॉप बॉक्स लिंक में वो आज इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा, लास्ट वीक का भी और इस वीक का भी. तो आज आप लोग जो है अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं. So I am going to explain the practical I am going to explain the practical applications. So here you can vary the value of stiffness element and damping elements. So with respect to the feedback, PID controller easily उसको खुद ही स्टेबल बना लेता है. आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूँ. आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन लैब जो है वो मेरे साथ होगी होपफुली. उसमें एक स्टूडेंट ने डेवलप किया था, आर्डिनो के साथ कंपैटिबल बनाया था एक जो फैन कंट्रोलर होता है आपके पास. सो उसमें उसने जो है वो उसके साथ मोटर के आरपीएम को इस तरह से जो है वो कंपैटिबल बनाया था कि जब रूम टेम्परेचर आपका है वो 30 डिग्री होता था तो वो मोटर के आरपीएम को मोर देन 2500 आरपीएम कर देता था, और जब वो लेस देन 25 होता था तो वो उसके आरपीएम को एनहेंस कर देता था. ये सारा हमने प्रोग्रामिंग में कंट्रोलर को जो है ये चीज़ें प्रोवाइड की थी, और ये जो प्रोग्रामिंग है हमने कंप्लीट कंट्रोलर में जो है वो सेव करवाई थी और उसको इससे कंपैटिबल बनाया था. अब होता क्या है कि आउटपुट पे डिपेंड करता है. अगर तो टेम्परेचर सेंसर ने बताया कि यहाँ पे आपके एरिया में गर्मी बहुत है, सो वो आरपीएम को ज़्यादा करेगा, तो ऑब्वियसली वो फीडबैक जो लेगा वो पीआईडी में आएगी. पीआईडी मीन्स प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डिफरेंशियल. इट इज़ यूज फॉर नॉन लीनियर ऑपरेशंस एंड इट हैज़ अ क्वाइट फास्ट फीडबैक. सो जितने जैसे ही टेम्परेचर वेरी होगा 25 से 30 या 30 से 25, जो टेम्परेचर वेरिएशन उसमें आ रही होगी उसके अकॉर्डिंगली वो आरपीएम को वेरी करता रहता है. सो सिमुलिंक की एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दी. स्टैंडर्ड हार्डवेयर से भी इसको कंपैटिबल किया जा सकता है. फिजियोलॉजिक टूल बॉक्स ऑफ मैटलैब. सो इट इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मॉड्यूल ऑफ अ मैटलैब. इट इज़ नॉर्मली यूज फॉर द बुलियन ऑपरेशंस. यू पीपल नो दैट मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स हैव अ Boolean operations. For example, they have a output in the form of 0 and 1. 0 means false and 1 means true. So true and false is the output of the system. But in some cases, most of the available systems are partial operational. So जब वो partially operate कर रहे होते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती कि यार ये 0 है या 1 है, ये ट्रू है या स्टेटमेंट या फॉल्स है. सो ऐसी जो स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वो उनको हम जो है वो फिजियोलॉजिक में सॉल्व कर रहे होते हैं इस टूल बॉक्स में. डाटा को आपने जस्ट लोड करवाना है. GUI इज़ ऑलरेडी डेवलप्ड एंड यू पीपल विल गेट द आउटपुट. सो व्हाई फिजियोलॉजिक टूल बॉक्स इज़ यूज्ड? इट इज़ यूज्ड टू डेवलप द रिग्रेशन एनालिसिस इक्वेशन and curve fitting equation. With curve fitting equation, you people can interpret the output of the system in future. So it is used for the future interpretation. इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और इस पर जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स कर रहे हैं उस पर भी जो है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में.
This is the neural network toolbox module and one of the worldwide used toolbox of MATLAB. Even my final year students are also using this. प्लीज़ अपने माइक ऑफ कर दें. Thank you. So some of my final year students are also working on the neural networks. Why neural networks? न्यूरल नेटवर्क्स की इसका भी GUI अवेलेबल है आपके पास ऐप्स में. डाटा को इनपुट करवाना है, आउटपुट आपको दे देगा. रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म कर सकता है. और जो इसके यूज़फुल टूल्स हैं वो इस तरह से हैं कि दिस सिस्टम इज़ कैपेबल ऑफ इंटरप्रेटिंग द फ्यूचर. फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा वेदर इंटरप्रिटेशन होती है. वेदर इंटरप्रिटेशन में वो आपको बता देते हैं कि फ्यूचर में इतने टाइम के बाद जो है वो आपका टेम्परेचर इतना होगा, विंड वेलोसिटी इतनी होगी और जो वेदर सिचुएशन है वो क्या होगी. सो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? बिकॉज दे हैव द कलेक्शन ऑफ द डाटा फ्राम डिफरेंट प्लेसेस और उसको जो है वो आर्टिफिशियली उन्होंने ट्रेन किया होता है अपने जो कंपैटिबल सिस्टम होता है उनका, और उसमें डाटा को लोड करवाते हैं और उस बेस पे वो इंटरप्रिटेशन करता है कि फ्यूचर इंटरप्रिटेशन करता है कि क्या एक्सपेक्टेड है कि क्या हो सकता है. सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. फॉर एग्जांपल एक टरबाइन है हमारे पास. पूरा का पूरा जो हाइड्रोडायनामिक मशीनरी में हमने यूज़ किया हुआ है फॉर द ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनके जो डिफरेंट फॉल्ट्स हैं, उनका जो डाटा है वो हमने स्टोर करवा दिया है कंट्रोलर में. तो उसके डिफरेंट जो परसेंटेजेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर बेरिंग में फॉल्ट आई तो इस तरह का उसका सिग्नेचर होगा. गियर बॉक्स के केस में, मिस अलाइनमेंट के केस में, लुब्रिकेशन के केस में ये इंडिकेशन है. सो हम अपने सिस्टम को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बना देते हैं, रोबोट बना देते हैं. सो फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर में यही है कि जब भी आप एक टेस्ट सिग्नल देंगे, टेस्ट सिग्नल मीन्स कि आपने उसको आर्टिफिशियली ट्रेन कर दिया. अब आप उस चीज़ को उससे डिस्कनेक्ट कर दें. अब आप उसको एक अननोन सिग्नल दें जो उसी मशीन का आपने कलेक्ट किया हुआ है फ्यूचर में, तो वो उस सिग्नल का वो एनालिसिस करके आपको बता देगा कि इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है या किस जगह पे फॉल्ट है या उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है. सो दिस इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट. ऑलमोस्ट यू पीपल हैव सीन डिफरेंट पीपल्स प्रोफाइल. यहाँ पे डीप लर्निंग मेंशन होता है. इसके अलावा जो है वो मशीन लर्निंग भी मेंशन होता है, न्यूरल नेटवर्क्स भी होता है. सो ये सारा ये मैटलैब टूल उसके लिए यूज़ होता है. ये आप लोग देख लें यहाँ पे इनपुट वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए हुए हैं मैकेनिकल. हेयर यू कैन गेट आउटपुट और फ्यूचर इंटरप्रिटेशन में ये कर सकता है. सो दिस इज़ इमेज प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन आई. ह्यूमन आई का भी जो डाटा है इन्होंने इसमें प्रोवाइड किया हुआ है और उस बेस पे भी GUI बनाया हुआ है. सो जो आप इमेज इंटरप्रेट करते हैं उस बेस पे ये आपको आउटपुट बता देगा. सिंपलेस्ट एग्जांपल है, अगर आप लोगों ने स्मार्ट एंड्रॉयड सेट्स अगर आप लोगों ने यूज़ किए हैं, आप में से कितने लोगों के पास जो हैं वो स्मार्ट एंड्रॉयड्स हैं? एनीवन प्लीज़? सबके पास ही हैं. यस, सबके पास हैं. यही बात मैं सुनना चाह रहा था कि आप सबके पास हैं. सो आप जब उसका पासवर्ड क्रिएट करते हैं या थंब लॉक जनरेट करते हैं, सो एक्चुअली क्या हो रहा होता है? इस फेस डिटेक्शन से भी वो आपका वो ओपन कर देता है जो आपका पासवर्ड है. इसके अलावा जो थंब आइडेंटिफिकेशन है वहाँ से भी वो कर देता है ओपन. सो इट इज़ ऑल अबाउट इमेज प्रोसेसिंग. सो इसके बैक एंड पे अगेन एक एल्गोरिथम डेवलप्ड है. आप उसको जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कर देते हैं कि अगर ये थंब इंप्रेशन आए तो ये ओके है और अगर ये ना आए तो ये ओके नहीं है. इसी तरह इमेज प्रोसेसिंग में जो बैक एंड पे डाटा स्टोर हो रहा होगा वो तो मैट्रिक्स की फॉर्म में ही होगा, बट यू कैन सी द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. सो ऑलमोस्ट ऑल द GUIs that are developed for the different modules of MATLAB, different apps are also developed now. So one of the app is also used in the MATLAB in your Android sets as well. So this is the example of AC to DC motors controllers. And this is the curve fitting module of MATLAB, the most intelligent module of MATLAB. For example, why we need curve fitting? Curve fitting is used to generate the mathematical equation that is used for the output interpretation in future. For example, आपने पास्ट 30 years का जो डाटा कलेक्शन है किसी भी सिटी का, फॉर एग्जांपल लाहौर में जो डिफरेंट एरियाज़ हैं, पास्ट 50 years का डाटा आपने कलेक्ट किया और आपने जो है वो उसका रिग्रेशन एनालिसिस किया.
सो हर एरिया की वो आपको एक पर्टिकुलर जो है वो कर्व फिटिंग से एक इक्वेशन जनरेट करके दे देगा। अब इस इक्वेशन की बेस पे जो है वो आप फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि किस मंथ में किस एरिया में क्या टेम्परेचर होगा। ये वेदर एंड प्रेडिक्शन का बता रहा हूँ। इसी तरह जो मशीन फॉल्ट्स हैं वो मैकेनिकल इम्प्लीमेंटेशन है इस टूल बॉक्स की, वो बहुत ज़्यादा है कर्व फिटिंग की। सो अगेन नथिंग, you have to import your data if it is in 1D 2D or 3D here, and you people will get the output result here. ये custom equation he will also ask for a polynomial equation of different orders, so highest order will provide the most accurate results. Please anyone, any question? सर इसमें ये कर्व के ऊपर डॉट्स किस चीज के हैं और ये कर्व किस चीज के? Yes, very good. Actually this question इस लेवल पे आपको ये क्वेश्चन अभी नहीं करना चाहिए, लेकिन चलें फिर भी आपको बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो प्रॉपर जो आपको ग्राफ बना हुआ नज़र आ रहा है, ये एक डेवलप्ड कर्व फिटेड इक्वेशन है जिसको प्लॉट किया गया है, फाइन। और इसके ऊपर ये जो प्लॉटेड इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एनर्जी एंड टेम्परेचर, ये इसको उन्होंने प्लॉट किया है। फिर उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट एरियाज़ का डाटा कलेक्ट किया है, इस डाटा को इन्होंने इसके ऊपर प्लॉट करवाया है। अब वो डाटा सिमिलरिटी इंडेक्स चेक कर रहे हैं कि कितनी सिमिलरिटी आ रही है। जैसे जैसे हमने सेव करवाया था, ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फिटिंग इक्वेशन में आई थी, वैसे वैसे जो डाटा कलेक्शन आजकल हो रही है वैसे वैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो ये सिमिलरिटी इंडेक्स से आपको बता रहा होता है कि कितना सिमिलरिटी इंडेक्स है जो कर्व फिटेड इक्वेशन है और जो डाटा कलेक्टेड है आपका, ठीक है। डाटा कलेक्शन तो तब होगी ना जब वो रियल टाइम में चीज़ हो रही होगी, लेकिन एक वो इंटरप्रिटेशन है जो फ्यूचर इंटरप्रिटेशन आप एक इक्वेशन से करते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंटरप्रेट करें इसे कि आज से 50 साल बाद जो इस्लामाबाद का टेम्परेचर है वो फॉर एग्जांपल वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर पास्ट 100 ईयर्स का आप डाटा प्रोवाइड करते हैं तो ये आपको इस तरह की एक इक्वेशन डेवलप करके दे देगा और आपको ग्राफ डेवलप करके दे देगा। सो अब एक रिसर्चर है जो ये कहता है कि ये एक इक्वेशन है जो एक मैकेनिकल इंजीनियर ने डेवलप की थी कि जो कमिंग 50 ईयर्स हैं वो इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। तो वो अब ये करता है कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है और डाटा कलेक्शन करता है टेम्परेचर की इस्लामाबाद के अक्रॉस कमिंग 50 ईयर्स में, और वो उसको प्लॉट करता जाता है। फिर वो सिमिलरिटी इंडेक्स चेक करेगा कि कितनी सिमिलरिटी आ रही है आपकी जो डेवलप्ड इक्वेशन जो आपने 50 साल पहले बनाई थी और जो 50 साल बाद डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं। सो इससे आपको ये पता लगेगा कि व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ योर मैथमेटिकल न्यूमेरिकल मॉडल। सो एनी क्वेश्चन प्लीज़, एनी क्वेश्चन प्लीज़। बस सही है। Okay, so this is the another toolbox of a MATLAB that is known as a signal processing toolbox. I am using this toolbox nowadays because some of your final year project students, your seniors are working with me on different projects, so they are master of this toolbox. We collect vibration data of different components and we plot different time plots, FFT plots and wavelet plots of these signals for the efficient data extraction and fault diagnosis. So these techniques are wise enough to remove noise from your signals or to filter data. Different filters like low pass filter, medium filters, band pass filters, high pass filters are also available. So ये कोई भी ऐसा नहीं है जो एक ही मैटलैब पे जो है वो मतलब कम्प्लीटली जो है उसका एफिशिएंटली उस पर वर्क कर सकता हो। सबकी जो एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल अगर कोई थर्मल आप में से कोई थर्मल में फर्दर एमएस या पीएचडी करता है तो हो सकता है वो मैटलैब का जो थर्मल का या ऑप्टिमाइजेशन का टूल है वो सबसे ज़्यादा उसको यूज़ करता होगा। अगर कोई वाइब्रेशन का है तो वो सिग्नल्स प्रोसेसिंग, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह और डाटा प्लॉटिंग को ज़्यादा यूज़ करता होगा। इसी तरह इट डिपेंड्स अपॉन द रिसर्च एरिया वेयर यू पीपल आर वर्किंग। सो इन स्लाइड्स को मैं ना भी पढ़ाता और आप लोगों को जो है वो मैं डायरेक्ट जो है वो मैटलैब पे ले जाता और एलिमेंट्री बेसिक से स्टार्ट कर देता और आपको जो है स्मॉल इक्वेशन डेवलप करना स्टार्ट करवा देता। लेकिन ये मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैटलैब की क्यों बता रहा हूँ, ये बिकॉज दीज थिंग्स आई थिंक and that you people should know before starting the MATLAB. This is the biomedical application of MATLAB. Again, you people can see different magnitudes
वेलोसिटी काउंटर्स आप लोग देख सकते हैं ब्लड फ्लो के जो आ रहे हैं डिफरेंट वेंस के जो लेंथ है उसके अक्रॉस। सो जो आपकी इस पे भी डिफरेंट रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है आपकी वेंस में किन पोजीशंस पे होती है, और इस पे जो है वो जो डाटा एनालिस्ट होते हैं वो हॉस्पिटल्स में जाके जो आपके पेशेंट्स होते हैं उनका डाटा कलेक्शन करते हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं फॉर एग्जांपल, जिनके वॉल्स का इशू होता है हार्ट के, या डाटा क्लॉटिंग का इशू है, सॉरी ब्लड क्लॉटिंग का इशू है, तो उनकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के जो हैं वो सैंपल्स लेके आते हैं, वो इसमें आगे फीड अप करवा देते हैं। इस बेस पे वो ये डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा जो आपका पेशेंट है वो कितना सीवियर है, उसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है। अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर बता देते हैं कि आपका जो पेशेंट है ये 1 ईयर या 2 ईयर तक चलेगा। सो वो इसी चीज़ से इंटरप्रेट कर रहे होते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं अभी। anyhow this is the MedLab mobile application. For example, some of you people are interested for your motor vehicles, कि मोटर व्हीकल आपके पास हैं, कार्स आप सबके पास अवेलेबल होंगी या मोटर बाइक है। सो आप कहते हैं कि सर हम डिफरेंट पैरामीटर्स यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल फ्यूल एफिशिएंसी इतनी है जी, इसमें जो स्पीड इतनी है, टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, वाल्व्स की ओपनिंग क्लोजिंग जो टाइम है इतनी है, और जो टेम्परेचर राइजिंग है सिलेंडर के अक्रॉस वो इतनी हो रही है। तो सर हम डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं वो इनपुट करवा के अपने इंजन की परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को पता करवाना चाहते हैं कि इसकी ये कितना एफिशिएंट है या इसकी लाइफ कितनी है। सो इस पे भी आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। ये जो एल्गोरिथम आपको नज़र आ रहा है, ये एल्गोरिथम आप टाइप करेंगे, उसमें एक ऐप डेवलप करेंगे। ये ऐप बाद में आप स्पॉन्सर कर सकते हैं कि आपको जो डिफरेंट पैरामीटर्स अवेलेबल हैं आप उनकी बेस पे जो है वो अपने इंजन की एफिशिएंसी को डिटेक्ट कर सकते हैं। So nothing is difficult, you people can do it. So this is the one of the most interesting case of aeroplane motion. इसमें जो है उन्होंने डाटा he have interpreted the data with respect to time. So aeroplane data is collected at a particular position. For example, you can see that here it is written pitch. So एरोप्लेन में एक पिच का जो पोर्शन है और एक एलिवेटर का है। पिच जो बिल्कुल फ्रंट पे होगी, जो एलिवेटर का पोर्शन है, इस पे इन्होंने जो है वो डाटा कलेक्शन किया है और इसको टाइम के अक्रॉस इन्होंने प्लॉट किया है। सो डाटा कलेक्शन हो रही है। सो आई विल ट्राई टू रन दिस वीडियो। Sorry, this animation is not working. Sorry, yes, working. Please see it. Airplane is ready for the flight operation. So please observe motion for a pitch and elevator, please. This is a demo of using MATLAB to fly an Boeing 747 example. In X-plane, the plane will be controlled to be automatically take off.
So this is the name of GUI MATLAB tool, automatic control system testing using MATLAB to SP10 UDP communication. सो आई होप सो आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी. सो आपके डेली रूटीन में इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं आप लोग उनको भी जो है एंजॉय करते होंगे. सो इन टुडेज़ लेक्चर वी हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल मैटलैब, व्हाट इज़ मैटलैब और हाउ वी कैन use it for different applications as a simple calculator. First two things are covered in today lecture. So in coming lectures inshallah we will go for the remaining points. So I hope so you people have enjoyed today lecture. Let me explain some of the मैं आपको जो डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ. लीव इट. यस दिस वन. सो दिस इज़ दी ब्रिज ऑफ ऑस्ट्रेलिया. इस पे हमने डाटा कलेक्शन की थी. ये डाटा हमारे पास आया था, हमने इसका एनालिसिस किया था. सो डिफरेंट जो ब्रिज की डायरेक्शंस हैं ये न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं जो आप वाइब्रेशन में डेवलप कर रहे होंगे. लुक हेयर लाइक वाज दिस वन सो दिस वन. सो ये इतने आसान नहीं होते. और फिर इनको जो एक्चुअल जो न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन है, जो एक्चुअल डाटा कलेक्शन है उसको हमने प्लॉट किया हुआ है. ये देखें एक्स वाई एंड जी डायरेक्शन में. सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड हेयर दीज आर द FFTs ऑफ द कलेक्टेड टाइम डोमेन डाटा. सो दिस इज़ द स्पेक्ट्रोग्राम ऑफ द कलेक्टेड डाटा. इन दिस वे वी विल एबल टू, दिस इज़ द मैटलैब कोड एज वेल. यहाँ पे हमने ब्रिज की जो डैम्पिंग है और उसको डायग्नोज किया था, उसकी क्रिटिकल फ्रिक्वेंसीज को भी, वो किस तरह से जो है हम वो ब्रिज डिज़ाइन को ऑपरेट करते हैं. दिस इज़ द मैथ स्प्रिंग सिस्टम. एनी आप लोग मेरे साथ हैं क्योंकि तो इंशाल्लाह आप लोग एंजॉय करेंगे ये जो 1.5 ईयर है, क्योंकि मैं आप लोगों को 5th सेमेस्टर में भी मिलूँगा, 6th में भी और 7th में भी होपफुली. सो दिस इज़ द आर्डिनो इंटरफेस एंड रास्पबेरी पाई इंटरफेस. दिस इज़ द कोडिंग जो आप वहाँ पे परफॉर्म करते हैं फॉर द compatibility with the MATLAB or other hardware. So in addition this was the one yes, already I have shared how to download and install MATLAB. So this report will be shared in the Google Classroom. Yes, this one. This is our latest paper that is going to publish in future, small system design for early diagnosis and classification of misalignment faults. So machine faults में जो है वो हमने artificial neural networks, AI intelligence techniques हैं हमारे पास. So we have implemented them with Hilbert-Human transform and empirical mode decomposition for the interpretation of different faults, and accuracy of our system was about 90%. and this is the algorithm and that was developed. बट वो जो एक्चुअल एल्गोरिथम है वो आपको नहीं दिखाऊंगा. जो हमने ऐप डेवलप की थी वो अभी भी अवेलेबल है मेरे पास. एंड दिस वाज अ सिस्टम दैट वाज डेवलप्ड बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट फ्रॉम UT Texla. आई वाज वेरी हैप्पी टू वर्क विद हिम. and this is the confusion matrix that is generated on the MATLAB, and this is the fault classifier result. So you can see in some cases ये टेस्टिंग है. 77% भी एफिशिएंट रिजल्ट्स आए हैं, 72% भी, 74% भी, एंड इन सम केसेस 81% 85% तक भी हम गए हैं. सो दिस इज़ आवर बिग अचीवमेंट एंड वी आर गोइंग टू पब्लिश दिस डाटा इंशाल्लाह इन फ्यूचर. सो प्लीज़ इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन, आप लोग अब ऑनलाइन आ सकते हैं. प्लीज़ लेट मी नो. यस प्लीज़. सर ये आज जितना भी आपने सिलेबस कवर करवाया है सर, ये हमारा एक प्रैक्टिकल अप्रोच थी ना सर. इसमें हमारे पेपर में तो कुछ भी नहीं आएगा, मतलब एग्जाम्स के हिसाब से तो इसमें कोई बात नहीं थी. Yes, actually we have decided week 1 for the implementation of MATLAB in practical cases. So practical implementation ज़्यादा ज़रूरी होती है. आपके जो एक्चुअल लेक्चर्स हैं वो तो आपको मुझे टाइम दे तो मैं आपको 2 से 3 आवर में भी सारे करवा दूँगा. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है आपके लेक्चर्स की, ये मैं आपको MATLAB शुरू करवा सकता था. ये मेरे पास प्रोग्राम भी अवेलेबल था, इसके अलावा मेरे पास असाइनमेंट भी अवेलेबल थी जो मैंने आपको करके दिखानी थी. बट प्रॉब्लम इज़ डैट कि आप लोगों के पास अभी MATLAB इंस्टॉल्ड ही नहीं है.
सो आज के लेक्चर में मैं यही चाहता हूँ कि अपकमिंग लेक्चर में जब आप लोग आएंगे तो आप लोग साथ साथ जो है वो मैटलैब को ऑपरेट कर रहे होंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। सो आज के दिन मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वो मैटलैब को एफिशिएंटली इंस्टॉल कर लें। ओके सर। यस, जब आप सब डन कर देंगे, यस सर मैटलैब इज़ इंस्टॉल्ड एंड वी आर रेडी फॉर द थ्योरी लेक्चर्स, सो वी विल गो फॉर डैट, बट यू पीपल हैव जस्ट 1 डे नाउ। उसके बाद देखें आपको मैं लेक्चर्स करवाऊँगा ऑब्वियसली, तो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स आपके देखे जाएंगे। एनीहाउ ये क्या टाइप किया आपने सर? यूट्यूब वीडियो अनअवेलेबल हैं, क्या मतलब है इसका? अनअवेलेबल का क्या मतलब होता है? कल अफजल आपसे बात कर रहे हैं सर। ये जी बताएं, ये आप क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। डिसेबल्ड का क्या मतलब है? मतलब वो चल नहीं रही, आप ये कह रहे हैं? डिसेबल्ड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नो, इट इज़ नॉट डिसेबल्ड। आप कोई और लिंक यूज़ कर रहे हैं मेरे ख्याल में। अगेन इफ़ यू पीपल हैव एनी प्रॉब्लम, आई एम चल नहीं रही। आप में से कोई और भी आके काइंडली एक्सप्लेन कर दे, क्या वाकई ऐसे है कि वीडियो नहीं प्ले चल रही है सर, मैंने तो भी ओपन की है जी? तो ये चल रही है। आपके पास जो लिंक आया होगा उसमें कोई इशू होगा, आपने कोई उसमें से कोड रिमूव कर दिया होगा। ऐसा कोई नहीं है। डिसेबल्ड कैसे हो सकती है? मैंने खुद से अनेबल्ड किया हुआ है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड प्लीज़? सर चल रहा है सर, लिंक चल रहा है। ओके फाइन। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड प्लीज़? नो सर। Okay, fine. So I hope so you people have enjoyed today lecture. In coming lectures, inshallah, we will start MATLAB. Please install MATLAB 2017 version, because I think you people will have a Core i3 or Core i4. So इन डेस्कटॉप्स पे जो है ना वो यही वर्जन्स जो है वो फ्लुएंटली चल सकते हैं, अदरवाइज़ आपका जो सिस्टम है वो हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इफ़ यू पीपल स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम, आप लोग मेरे से किसी भी वक्त कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को मैटलैब व्हाट्सएप एंड गूगल क्लासरूम लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।